bloody-minded, monomaniacal focus on a single goal. This means that our mind should be completely aligned to one goal. The prelims is coming, we need to study in an intense schedule, and if we miss a single day, the vicious cycle of backlogs will start. ऐसा कितनी बार हुआ है आपके साथ कि आप किसी दिन सुबह उठे और आपको लगा यार आज तो पढ़ने का मन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, मैं अपने फ़ोन पे रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम इंस्टाग्राम पे लगा लेता हूँ, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, दुनिया जहान की हमारे पास डिस्ट्रैक्शंस हैं, एंड द मोमेंट आवर मॉर्निंग गेट्स वेस्टेड एंड वी हैव एन अनप्रोडक्टिव मॉर्निंग, फिर सोचते हैं थोड़ा दो और सो जाते हैं, लंच कर लेते हैं, मे बी शावर ले लेते हैं, और करते करते इवनिंग हो जाती है एंड आवर एंटायर डे गेट्स वेस्टेड। इफ़ वी वेस्ट जस्ट वन डे, अगर हम सिर्फ एक भी दिन वेस्ट करते हैं अपने नेक्स्ट प्रीलिम्स के साइकिल में, इट हैज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हो सकता है उसी दिन हम कुछ पढ़ लेते दैट माइट हैव कम इन द एग्जाम। सो वी नीड टू बिकम अ गोल डिगर, एंड दैट इज़ वाई आई एम वेयरिंग दिस टुडे। वी नीड टू क्रश आवर गोल्स। जो हमारे गोल्स हैं हमें उन्हें क्रश करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दैट इज टू हैव अ साइंटिफिक स्टडी रूटीन विच वी कैन एक्चुअली फॉलो। For this video, I've done a lot of research from my medical books to come up with some principles of neuroscience that we can use to ensure that we have a proper study routine which is scientific, followable, relevant, and actually makes us become a goal digger. रूटीन की बात करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व। हमें लगता है स्टडी शेड्यूलिंग इज ओनली अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बट ऐसा नहीं है। देर आर मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व टू। फर्स्टली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज ब्रेन कैपेसिटी। आपने भी ये बहुत बार देखा होगा, सुबह उठ के आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है यू फील फ्रेश, आपको लगता है मैं पढ़ सकता हूँ, एंड कई बार शाम को भी ये फीलिंग आती है, टाइम है, हम टेबल पे बैठे हैं, सामने किताब भी है, पर हमें फीलिंग आती है यार अभी मन नहीं कर रहा, अभी दिमाग में घुस नहीं रहा, बिकॉज दिस इज अ प्रिंसिपल दैट वी इग्नोर, विच इज ब्रेन कैपेसिटी। Our brain capacity on a normal day declines like this. In the morning, it is the highest when we wake up, और धीरे धीरे वो decline करती है। Now there are ways in which we can enhance this brain capacity, and there are things that we do which actually lowers our brain capacity, which I will talk about in this video as I go forward. But ये एक important principle है। Second, time management. Of course, this is the most important principle. और कई बार हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने तो आज 15 घंटे पढ़ाई कर ली, but that's rarely the case. मैंने बहुत बार फॉरेस्ट ऐप के बारे में बात की है। This is the same app that I use to track my focus time, and it is an amazing app. If you search on my channel about forest app, you'll understand how this app is to be used. But this is something we have to use ताकि हमारा फ़ोन, जो हमारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, that does not become a problem for us. हम प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे और हम एक्चुअली ट्रैक करेंगे कि हम कितना टाइम पढ़ाई कर पाते हैं। द थर्ड बेसिक प्रिंसिपल इज योर सबकॉन्शियस माइंड। व्हेन आई वाज गिविंग माय AIPMT, which is now called the NEET, every day after waking up and every day before sleeping, I used to write in my journal, All India rank 1 to 10. I have to crack All India rank 1 to 10. I have to crack All India rank 1 to 10. Now let me tell you the ranks that I got. In the NEET, I got 70. In the AIMS, I got rank 115. In Manipal, I got 116. In JIPMER, I got 117. अब ऐसा नहीं है कि ये automatically हुआ, and these are the exact ranks I got. Look at what this number actually looks like. There's a very interesting book you can read here called The Power of Your Subconscious Mind. Manifestation actually works, and we have to activate our subconscious mind, visualize our success to get here. इसी के लिए I made this target tracker, which is a part of my STEP initiative, the free initiative, free guidance initiative that I'm running for prelims 2025, and I'll talk about this basic principle too, but हमें इसको भी ध्यान रखना है। Then our diet. अब diet में there is a very important thing that we have to understand. Diet is connected to our brain capacity. हमारे brain के around there is something called the blood brain barrier. Blood brain barrier का क्या मतलब है? Everything that we eat or everything is which is in our blood does not reach our brain. सब कुछ brain तक नहीं पहुंचता. There is a barrier around the brain. Blood comes around this barrier and कुछ ही चीजें इस barrier को cross करके हमारे brain तक पहुंच सकती हैं. This blood brain barrier actually filters out a lot of nutrients. So the only thing that reaches our brain is glucose. But फिर आप पूछोगे बाकी सब खाने का क्या फायदा? Even protein gets converted to glucose in our body. Even fat gets converted to glucose in our body, and that is the role of our liver. तो हमें high glucose या high sugar, high calorie diets नहीं खानी है, because this is what carbohydrate, proteins and fats look like when they turn into glucose and impact our brain. When we have a lot of carbohydrates, there is a sudden glucose spike, but there is also a sudden crash. आपने बहुत बार देखा होगा when we have high sugar food, after 2-3 hours we feel कि यार सोना है मुझे, because your brain got a lot of energy all at once
and suddenly that energy was taken away. Your blood glucose levels dropped and your brain crashed. Commonly, this is called the sugar crash. This is something that we have to avoid. So we have to have a high protein diet. हाई फैट डाइट से भी काम चल जाएगा ब्रेन के लिए, बट उसके और बहुत नुकसान हैं जो हम नहीं लेना चाहते. So this is another principle that we have to keep in mind. Then distractions, digital, socio-emotional and environmental. तीनों distractions को हमें अपने से दूर रखना है. We can't get distracted by our phones, we can't get distracted by constant calls, by constant requests, and हमारी environment भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर हम distract ना हो. Keeping these principles in mind, let us see what our schedules should look like. The most important part of our schedule is sleep. अगर हम sleep fix कर लेंगे तो हमारा schedule वैसे भी fix हो जाएगा. So this is where I will start our schedule. Now, I will say that we have to sleep around 11:30 and wake up around 7. अब ये टाइम मैंने कैसे फिक्स किया, दिस विल बी एविडेंट टू यू इन द वीडियो, बट हियर आई वांट टू टेल यू अबाउट एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन. क्या होता है रिवेंज प्रोक्रास्टिनेशन? मैंने पूरे दिन काम किया, पूरे दिन बहुत अच्छे से मेहनत करी, आई एम अबाउट टू स्लीप एट 11:30, बट मेरा ब्रेन मुझसे अब रिवेंज लेगा बिकॉज मैंने पूरे दिन अपने ब्रेन से काम कराया है. हाउ विल इट टेक द रिवेंज? इट विल से यार एक शो और देख ले, एक यूट्यूब वीडियो और देख ले, 2-3 मिनट रील और देख लेते हैं, एंड देन वी नेवर स्लीप ऑन टाइम. Now, this is the first important thing in our schedule. We have to fix a schedule. Our brain has something called a circadian rhythm. अगर हम उस rhythm में रोज सेम टाइम पे सोएंगे और रोज सेम टाइम पे उठेंगे, our brain will get accustomed to it. 7 to 8 hours of quality sleep and a bedtime routine. Now, before we sleep, we have to avoid stimulants like screens. Our screens emit blue light, and blue light makes us wake up. We actually need yellow light when we want to sleep. इसीलिए बहुत फोन्स में एक वो स्लीप फिल्टर भी होता है वेयर येलो लाइट गेट्स इमर्ज्ड. तो ये पहली चीज हमें याद रखनी है दैट समथिंग लाइक दिस इज व्हाट आवर स्लीप शेड्यूल शुड लुक लाइक. अभी के लिए इसको अज्यूम कर लो. नाउ लेट्स सी व्हाट द एक्चुअल शेड्यूल इज. वी वेक अप एट 7. नाउ इफ यू वेस्ट टाइम आफ्टर वेकिंग अप, योर शेड्यूल गेट्स रूइंड. हमें उठते ही ये करना है कि हम पढ़ने बैठ जाएं. अभी अपने आप तो नहीं होगा, ये मोटिवेशन से तो नहीं होगा. इसके लिए वी हैव टू एक्टिवेट आवर सबकॉन्शियस माइंड. सो द मोमेंट वी वेक अप, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज राइट अ डेली एफर्मेशन. आई विल क्लियर प्रीलिम्स 2025. इसकी जगह है हमारे टारगेट ट्रैकिंग जर्नल में. दिस इज वेयर वी स्टार्ट. द मोमेंट यू वेक अप, think about what has happened. In the past 8 hours, your brain has been sleeping. 8 घंटे से या 7 घंटे से आप सो रहे हो. आपके ब्रेन को क्या नहीं मिला है? Your brain has not gotten any sort of water. So the moment you wake up, your first task has to be to hydrate. Hydrate करने के बाद आपको थोड़ा सा ग्लूकोज अपने ब्रेन को देना है so that you actually start working. And here I will recommend that you have some fruits. They're anyway also good for us. Fruits like an apple and a banana in the morning, the moment we wake up. So हम 7 बजे उठे या 6:30 उठे, and within 15 minutes we have to brush our teeth, maybe splash some water on our face, drink water for actual hydration and have some fruits. The moment this gets done, we have to start studying. कोई शावर नहीं लेना है, ब्रेकफास्ट नहीं करना है. This is the peak time of your brain capacity. आपकी brain capacity maximum है. Use this time to study hard. इसके लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? फॉरेस्ट ऐप चलाएंगे ताकि हम अपने फोन से डिस्ट्रैक्ट ना हो. Now, there is a very important saying called eat your frogs first. Do the most difficult thing first. यूपीएससी में हमारे लिए सबसे डिफिकल्ट चीज क्या है? एक्टिव रिकॉल, रिविजन एंड स्टडिंग हार्ड सब्जेक्ट्स. This is your time to do that. Wake up with this in the first 2.5 hours of the day. Start with active recall and start with revision. Eat your frogs first. पानी पिया, फ्रूट्स खाए, पढ़ने बैठ गए and started revising. इसके लिए हमें सोने से पहले एक और चीज करनी पड़ेगी. We will have to ensure that our tables are set for the next morning. Now, 9:30 तक we have studied. 2.5 घंटे की हमने पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है at 9:30. अगर आपने बस ये काम कर लिया, the rest of your day will go well. और ये आपने पक्का नोटिस किया होगा. अगर हम स्टडी स्टार्ट कर लेते हैं इन द मॉर्निंग एंड वी हैव अ गुड स्टडी स्लॉट इन द मॉर्निंग, द रेस्ट ऑफ द डे गोज वेल. नाउ एट 9:30 यू विल फील हंग्री एंड यू आर ऑल्सो अ बिट टायर्ड. अब हम लेंगे अपना पहला ब्रेक ऑफ 1 आवर. अब यहाँ पर हमें 2 काम करने हैं. डाइट, वी नीड टू हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड वी नीड टू रिचार्ज आवर ब्रेन कैपेसिटी. ब्रेन कैपेसिटी इज डिक्लाइनिंग नाउ. अब डिक्लाइनिंग ब्रेन कैपेसिटी को हमें रिचार्ज करना है. द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू टेक अ शावर. आपने देखा होगा कि शावर लेने के बाद वी जनरली फील मोर एक्टिव बिकॉज आवर ब्रेन डज रिचार्ज. तो पहले वी विल हैव अ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट हम उसी प्रिंसिपल पे करेंगे डाइट के जो हमने पढ़ा है. वी विल नॉट हैव अ हाई कैलोरी हाई शुगर ब्रेकफास्ट. वी विल हैव अ लो कैलोरी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट. थिंग्स लाइक एग्स और चना
These are things that we will eat in our breakfast and we will have a low calorie breakfast, right? ताकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज मिल जाए and then to activate our brain we'll take a shower. This is what we have to do in the first slot. Now 10:30 तक हम shower लेके दोबारा बैठ रहे हैं and we'll start our second study slot. This is our second slot of deep study. इस टाइम पे हमारी ब्रेन कैपेसिटी हमने फिर से रिचार्ज कर ली है. वी आर एट हाई ब्रेन कैपेसिटी. हमारा मन करेगा पढ़ने का. एंड फ्रॉम 10:30 to 1:30 फॉर 3 hours वी विल नाउ स्टडी. 3 घंटे का टाइम क्यों रखा? जो भी एग्जाम हम देंगे, या तो हम प्रीलिम्स देंगे या मेंस देंगे. मेंस इज ऑब्वियसली द बिगर एग्जाम. 3 घंटे का ही एग्जाम होता है मेंस का. प्रीलिम्स में 2 घंटे का होता है. If we have an ability to focus constantly for 3 hours, on the exam day also, our brain will stay active. So this is our second study slot and we have to have deep study in this time. हमने अपनी ब्रेन कैपेसिटी को रिफ्रेश कर लिया. टाइम मैनेजमेंट में दोबारा हम फॉरेस्ट ऐप यूज करेंगे. इस टाइम पे अवॉइड एक्सेस कैफीन. Excess caffeine is more than 150 milligrams a day. It's obviously very difficult to measure it, but I would say अगर आप दिन में 2 cups of coffee से ज़्यादा पी रहे हैं, that will not breach this limit, but that's not good for you. At this time, again, keep hydrating your brain. अपने टेबल पे keep a bottle of water, keep having it, keep hydrating yourself and study with a deep focus. फ़ोन को दूर रख दो. फॉरेस्ट चलाओगे तो वैसे भी फ़ोन आपका accessible नहीं होगा. This is what you need to do and this is our second slot. Now, imagine this. It is 1:30 PM और आप आज ऑलरेडी 5.5 घंटे पढ़ चुके हो. You are way ahead of the competition. You're doing a great job already और आपका दिन sorted है. आपको अपने बारे में अच्छा लगने लगेगा. You will see endorphin release happening. But of course, 5.5 घंटे पढ़ने के बाद we will be a bit tired and we do need a break now. So this is now the other key determinant of our day. अगर हमने ये ब्रेक ढंग से ले लिया, हमारा आगे का दिन भी बहुत अच्छे से जाएगा. 1:30 to 3:30, this is our third slot and we are having a break now. अब देखो, this break is of course for our lunch. Lunch में same principle follow करेंगे. High protein, high fiber, no heavy meals. होता क्या है when we eat lunch? हमने lunch खाया and all of the food goes into our stomach and then to our intestines and whatnot. इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए सारा ब्लड जो बॉडी का है दैट कम्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम. इवन ब्रेन से भी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम कर कम्स टू द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू डाइजेस्ट दिस फूड. द मोमेंट ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन रिड्यूसेस, ब्रेन से ब्लड सप्लाई रिड्यूस होकर डाइजेस्टिव सिस्टम तक आ गई, देन व्हाट हैपेंस? वी स्टार्ट फीलिंग लेथार्जी. इसीलिए लंच करने के बाद हमारा मन करता है दैट वी नीड टू स्लीप नाउ. अगर आपने यहाँ पर लंबी नैप ले ली तो आपका दिन फिर से रुइन हो जाएगा और फिर आपको रात को भी नींद नहीं आएगी. सो वी हैव टू अवॉइड लेथार्जी. अगर आपको बहुत लेथार्जी हो रही है, टेक अ शॉर्ट नैप. कीप योर स्लीप शॉर्ट एट दिस टाइम, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ट्राई नॉट टू स्लीप हियर. अवॉइड दिस लेथार्जी. और इसका बेस्ट तरीका क्या है? टू टेक अ वॉक. हैव लंच एंड टेक अ वॉक. नाउ this will one give us physical activity. We'll go out of our room or our library. We'll also feel good. And this is what we need to do ताकि हम lethargy हमारे पास ना हो. हमारे ब्रेन को वापस ग्लूकोज मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगी टू बी एक्टिव एंड वी हैव टू कम बैक एट 3:30. अब हम 3:30 पे वापस कैसे आएंगे? एक बार लंच के लिए ब्रेक तो ले लेंगे, बट हाउ विल वी एग्जैक्टली कम बैक एट 3:30? इसके लिए 3:30 PM पे एक इवेंट प्लान करना पड़ेगा ताकि हमारे ब्रेन को पता हो कि मुझे ये इवेंट करना है. दैट इवेंट शुड बी MCQs. The moment you come back from here, start with MCQs. Solve some MCQs at this time. Keep your area well lit. Sit upright. Sit on the table. Nothing else on the table other than your MCQ book and solve some MCQs at this time. Stimulate the test environment. मॉक टेस्ट दो, डिस्ट्रैक्ट ना हो, फोन को दूर रखो और यहाँ पर MCQ सॉल्व करो. जब हम MCQ सॉल्व करते हैं, आवर ब्रेन हैज नो चॉइस बट टू बी एक्टिव. एंड मे बी पहले 2-3 MCQs में हमें फील होगा कि यार समझ नहीं आ रहा, बट व्हेन वी कीप डूइंग देम आवर ब्रेन विल गेट एक्टिव अगेन. दिस इज अ वे टू अवॉइड स्लीप आफ्टर लंच. तो ये हमारा थर्ड स्लॉट ऑफ स्टडी हुआ जहाँ पर हम MCQ सॉल्व करेंगे. द मोमेंट दिस इज डन, द मोमेंट दिस इज डन, वी स्टिल नीड टू कंटिन्यू स्टडिंग बिकॉज ये स्टडिंग नहीं है. वी हैव नॉट लर्नड एनीथिंग न्यू, वी हैव ओनली रिवाइज्ड. Now, 4:30 PM, I would now recommend that you do something passive. आप already काफ़ी पढ़ चुके हो, you now need some passive activity. So from 4:30 to 7:30 is our fourth slot and this is why I take most of my classes at 4:30 PM ताकि हम इस टाइम पे वीडियो लेक्चर्स देख सकें. When we are watching the video lectures at this time, have passive activity. आप बैठ के पढ़ो. It is a passive learning exercise. That does not mean that you have to also stay passive. लेटना नहीं है, पॉपकॉर्न नहीं खानी है लेक्चर देखते वक्त, देखना उनको एक्टिवली ही है. सो
ट्राई मेकिंग रनिंग नोट्स, पार्टिसिपेट एक्टिवली, जो भी लेक्चर में बोला जा रहा है एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट, अगर आपको नोट्स पहले से भी मिल रहे हैं, जैसे आई गिव मोस्ट ऑफ माई नोट्स पहले से, आई डोंट डिक्टेट एनीथिंग इन द क्लास, स्टिल राइट, कीप राइटिंग समथिंग, sit upright, don't lie down, and again hydrate your brain. At this time you can have some tea or some amount of caffeine because your brain capacity is going down. उसको refresh करने के लिए caffeine खाना, caffeine लेना इस time पे is not a bad idea. Now you've come to 7:30. You've seen the lecture also. You have had a long day. Now you actually deserve a break. And this is your own time. From 7:30 to 10, this is your complete break. It's a leisure activity. आपको phone use करना है, आपको Netflix देखना है, आपको जो भी करना है आप इस time पे करो. But don't overstimulate your brain. इस time पे we have to avoid revenge procrastination. अब revenge procrastination avoid करने का क्या तरीका है? We need another event. 10 PM पे एक इवेंट चाहिए जिससे हम 10 PM पे रुके तो सही, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट टेकिंग अ ब्रेक आवर ब्रेन विल गो इनटू दैट ब्रेक मोड. तो 10 PM पे वो इवेंट क्या है? इन माय स्टेप फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम 9 to 11 द ग्रुप इज ओपन एवरी डे फॉर यू टू पोस्ट योर टारगेट ट्रैकिंग जर्नल. तो ये टारगेट ट्रैकिंग जर्नल जब आप पोस्ट करोगे इस टाइम पे, यू हैव टू पोस्ट बिटवीन दिस टाइम, मेक दैट इवेंट जो आपका वो ब्रेक खत्म करे. अगेन यू विल अफर्म, आप यहाँ पर दोबारा लिखोगे टारगेट ट्रैकिंग जर्नल में, I will clear prelims 2025. You put that event here, your brain will get active again, right? लेकिन आप थक चुके हो, 10 PM है, हमें बस 10 PM पे ये अश्योर करना है कि हमारे फ़ोन से जो नेटफ्लिक्स या जो भी हमारी डिस्ट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए. ऑल्सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस ब्रेक में डू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स. उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इफ यू स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू देम. नाउ द लास्ट स्लॉट, 10 to 12. 10 to 12 यहाँ इसीलिए है बिकॉज नॉट एवरीबडी विल स्लीप एट 11:30, बट वी हैव टू स्लीप अराउंड 11 to 12. 11 to 12 के बीच में हमें सोना है. फर्स्टली वी हैव टू डू अ क्विक रिव्यू ऑफ डेली टॉपिक्स, स्पेशली जो हमने 4:30 to 7:30 के लेक्चर में देखा उसको एक बार हम रीड कर लें, और सुबह जो हमने पढ़ा था सेकेंड स्लॉट में उसको एक बार रीड कर लें. जस्ट रीड इट वंस. हमने अपना टारगेट ट्रैकिंग पोस्ट किया, अब ब्रेन इज एक्टिव अगेन. इस टाइम पे स्क्रीन्स नहीं होने चाहिए हमारे पास, अदरवाइज वी विल फॉल प्रे टू रिवेंज प्रोक्रेस्टिनेशन. इस टाइम पे 10 o'clock we have posted our target tracking journal. The moment we have posted our target tracking journal, उसके बाद फोन को दूर रख दो. Read these notes that you have made or whatever notes you have studied today, उनको एक बार quickly revise करो, and now prepare your mind to go to sleep. इस टाइम पे you can do it even lying on the bed. Recap the key points for the day. अब देखो आपका दिन कैसा था. Again you will write that reflection in the target tracking journal, तो आपका subconscious mind दोबारा एक्टिव होगा. एंड लास्ट थिंग बिफोर यू स्लीप, प्लान फॉर टुमारो. क्योंकि अब मेरा गोल है पहला कि मुझे 11 साढ़े 11 तक सोना है एंड मुझे 7 AM उठते ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है. तो 7 AM उठ के मैं प्लानिंग नहीं कर सकता. आई कैन नॉट प्लान इन द मॉर्निंग. सो बिफोर आई स्लीप, अ क्विक रिव्यू ऑफ नोट्स, प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे एंड स्लीपिंग एट 11:30. ये अगर मैंने टाइम फिक्स कर लिया, नाउ यू विल अंडरस्टैंड हाउ दिस टाइम इज फिक्स्ड. नाउ आई विल कीप फोकसिंग एंड स्टडिंग टिल दिस टाइम एंड स्लीप एट 11:30. नाउ आई एम इन अ पर्टिकुलर रिदम, और इस रिदम को मुझे मेंटेन करना है. दिस इज द प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो. तो अगर मैं समराइज करूं कि हमारा पूरा दिन कैसा दिखेगा, वी विल वेक अप एट 7 एंड इमीडिएटली वी विल स्टार्ट स्टडिंग. फर्स्ट स्लॉट विल बी फ्रॉम 7 to 9:30. देन वील टेक अ ब्रेक फॉर 1 hour. इस ब्रेक में हम क्या करेंगे? वील हैव अ शावर एंड वील हैव अ ब्रेकफास्ट. देन आवर सेकंड स्लॉट of 10:30 to 1:30, 5 hours we have studied. Again 5.5 hours actually we've studied. Then we have another break. This is an important break because यहाँ पर हमें lunch करना है. We have to have a short nap if possible. नहीं तो we have to take a walk. Then our third slot of MCQs where we have to activate our brain again ताकि हम दोबारा से अपनी पढ़ाई start कर सकें. Slot 4 of passive activity जहाँ हमें passively read करना है. Then our last break. In this break we have to take our dinner. We have to have proper time. We speak to our family, maybe watch some Netflix, relax. But then again, no revenge procrastination. सोने से पहले, no screens, focusing on what I have to do the next day, and a quick review of everything I have studied today. This schedule will make you a goal digger and will make you best prepared for prelims 2025. So all the best. I hope you can follow this and let's put our best foot forward. Thank you.